Students, good morning to everyone. In the previous lecture, we have explained, we have learnt about Euclid's division lemma and Euclid's division algorithm. Students, Euclid's division lemma as well as Euclid's division algorithm are closely interrelated about 95%. So, in NCERT books and many other books, Euclid's division lemma and Euclid's division algorithm are taken as same. I had provided some questions to solve. In the previous lecture. First of all, I am going to discuss the given questions in the previous lecture. Students, first question is that so that every positive even integer is of the form 2m and that every positive odd integer is of the form 2m plus 1 where m is some integer. Here I will not write question on the board because space for writing is less. So that every positive even integer is of the form 2m and that every positive odd integer is of the form 2m plus 1 where m is some integer. Here given integer is of the form 2m plus 1. So here we consider the value of v is equal to 2. स्टूडेंट्स स्टेटमेंट्स उस तरह ही लिखेंगे जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया है. लेट A and B are two given positive integers and B is equal to 2. Then by Euclid's division lemma, एक
can be written as A satisfies the condition BQ plus R, where R is greater than or equal to 0 but less than D. It implies that A is equal to putting the value of B, we get A is equal to 2Q plus R. Here R is greater than or equal to but less than 2. It implies that A is equal to 2Q plus R, where R is equal to 0, 1, 0 and 1. स्टूडेंट्स, R का वैल्यूज 0 से लेकर 2 से कम होगा। इसका मतलब कि या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। इसी को हमने एक्सपेंड करके लिख दिया है। इसका मीनिंग ये है, if R is equal to 0 from equation first, A is equal to 2Q plus 0. It implies that A is equal to 2Q. If R is equal to 1 from equation first, A is equal to 2Q plus 1. इसको फर्दर प्रोसीड नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स, here we observe that form of A is found either 2Q or 2Q plus 1। यहाँ पर हमने A का फॉर्म या तो 2Q देखा या 2Q plus 1 देखा। It means that any positive integer is either of the form 2Q or 2Q plus 1। क्वेश्चंस में 2m और 2m plus 1 लिया है। यहाँ पर आप Q के प्लेस पे m लिख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आप 2Q plus 1 राइट कर लें। Hence every पॉजिटिव, स्टूडेंट्स ये क्या है? इवन नंबर 2 into something
2 के मल्टीपल में जो भी नंबर्स होते हैं इवन होंगे और इवन प्लस 1 ऑड होगा। तो ये ऑड है और ये इवन है। तो हेंस एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, m लेंगे q की जगह तो 2m होगा, एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। Write down. Question number 2. So that any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1 or 3m plus 2 for some integer m. इसमें हिंट दे रहे हैं, आप ऐसा लिखेंगे लेट ए एंड b is equal to 3m के फॉर्म में है, इसलिए b के प्लेस पे 3 लेना। बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a is equal to 3 bq plus r, where जीरो 1 and 2, if r is equal to 0, beget a is equal to 3q plus 0, a is equal to 3q, a is equal to 3m, where q is equal to m। आप q को m में बदल सकते हैं।
क्योंकि क्वेश्चंस में 3m और 3m+1 के फॉर्म में दिया है। या तो आप इसको m मान लें तो यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, if r is equal to 1 we get a is equal to 3q plus 1. It can be written as 3m plus 1 where q is equal to m. If r is equal to 2 we get a is equal to 3q plus 2. This implies that 3m plus 2 where q is equal to m. In all these cases we observe that positive integer is either of the form 3m, 3m plus 1 और 3m plus 2। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को या तो 3m या 3m plus 1 या 3m plus 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्वेश्चंस में यदि 3q plus 1 और 3q plus 2 दिया होता तो आप यहाँ चेंज नहीं करते, ये यहीं तक करके छोड़ देंगे। Question number 3. Show that any positive odd integer is of the form 4m plus 1 or 4m plus 3 for some integer m. पॉजिटिव ऑड इंटीजर, स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑड की बात किया है। क्वेश्चन नंबर 3. लेट ए बी एनी पॉजिटिव odd integer and m is equal to 4। यहाँ पर b के जगह हमने m लिया है। by Euclid's डिवीजन लेमा a is equal to mq plus r where r का वैल्यू m से छोटा होगा। a is equal to m का वैल्यू 4q plus r। यहाँ b ही रहने दें, b is equal to 4। फोर क्यू प्लस आर। देखिए हमने हर क्वेश्चंस में टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी कंसीडर किया है। लास्ट में ही चेंज करेंगे, एम के फॉर्म में रहेगा तो एम कर देंगे, एन के फॉर्म में रहेगा तो एन कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेस देन 4. A is equal to 4Q plus R, where R is equal to 0, 1, 2 and 3. If R is equal to 0, we get A is equal to 4Q plus 0. It implies that A is equal to 4Q. If it can also write as A is equal to 4M, where Q is equal to M. If R is equal to 1, then A is equal to 4Q plus 1. It implies that A is equal to 4M plus 1, where Q is equal to M. If R is equal to 2, A is equal to 4Q plus 2. It can be written as A is equal to 2 into 4M plus 2, where Q is equal to M. If R is equal to 3, A is equal to 4Q plus 3. It implies that 4M plus 3, where Q is equal to M. देखिए ये 4M, 4 का प्रोडक्ट यानी इवन नंबर, ये इवन है, ये ऑड है. इवन नंबर 4 इंटू समथिंग, जो 2 से 4 से 6 से 8 से डिविजिबल होते हैं, इवन नंबर. तो ये इवन नंबर है, इवन प्लस 1 यानी ऑड. ये इवन नंबर प्लस इवन यानी इवन है, और ये ऑड है. तो ऑड इंटीजर जो मिला वो या तो 4M प्लस 1 वाले हैं या तो फिर 4M प्लस 3 वाले हैं. इट मीन्स दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4M प्लस 1 और 4M प्लस 3. Here K is not equal 4M since A is an odd positive integer. Therefore, A is not equal 4M and A is not equal 4M plus 2. ऑड नंबर इवन नंबर के बराबर नहीं हो सकता, तो
तो ए आपने ऑड मान लिया है, एनी पॉजिटिव ऑड, ये इवन है, तो इवन और ओड बराबर कभी नहीं हो सकते, तो ए का वैल्यू ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। Therefore a is equal to 4m plus 1 और भी लिख सकते हैं, a is equal to 4m plus 3। a का वैल्यू कभी भी इवन वाले पॉसिबल नहीं है, ऑड ऑड के बराबर होंगे, इवन के बराबर होता है। इट मीन्स दैट लास्ट स्टेटमेंट आप खुद लिख लें। So that every positive odd integer is of the form स्टूडेंट्स, फिर ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात किया है। आप लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर से स्टार्ट करेंगे, वी का वैल्यू 6 लेंगे और फर्दर स्टेप्स एज इट इज करना है। देखिए आर.डी. शर्मा के बुक में ज़्यादातर ये जो है 6m प्लस 1 इस m के टर्म में क्वेश्चंस दिया है। आर.एस. अग्रवाल जो है 6q प्लस 1 इस फॉर्म में दिया है। अदर बुक्स p के फॉर्म में दे सकता, q के फॉर्म में दे सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। Question number 5. Using Euclid's division lemma, so that a square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. ये क्वेश्चन शायद प्रीवियस क्लास में हमने करवाया है। देखिए, लेट पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। यहाँ पर स्क्वायर दिया है, तो जो कर रहे हैं वो करना ही है, एक आगे स्टेप स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड्स। ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b is equal to 3, then by Euclid's division lemma, we get a is equal to bq plus r, where q and r are some integers. एक r का वैल्यू 0 लीजिएगा तो a इक्वल टू 3 क्यों मिलेगा। क्वेश्चंस में स्क्वायरिंग पूछा है कि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स,
9Q²। इसको आप ऐसे लिख सकते, 3m हो जाएगा। हेयर 3Q² इज इक्वल टू m। इफ r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 3Q प्लस 1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। 3Q प्लस 1 a² इज इक्वल टू 9Q² प्लस 1 प्लस 6Q, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। a² इज इक्वल टू 9Q² प्लस 6Q प्लस 1, a² इज इक्वल टू 3 कॉमन ले सकते, 3Q² प्लस 2Q प्लस 1, a² इज इक्वल टू 3m प्लस 1। हेयर 3Q² प्लस 2Q इज इक्वल टू m। स्टूडेंट्स, आप चाहे तो यहाँ पर 3Q कॉमन ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि 3Q लीजिएगा तो यहाँ पर 3Q बचेगा और यहाँ पे 2 केवल बचेगा, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 3 को लेफ्ट करके बाकी जो भी बचेगा उसको m मान लेंगे। नेक्स्ट, इफ r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3Q प्लस 2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, a² इज इक्वल टू 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a² इज इक्वल टू 9Q² प्लस 4 प्लस 2 इंटू 3Q 6Q इंटू 2 12Q, a² इज इक्वल टू क्या कॉमन लीजिएगा, 9Q² प्लस 12Q प्लस 4 को आप 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो 3Q² a² इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3Q² प्लस 4Q प्लस 1 तो a² इज इक्वल टू 3m प्लस 1, इसको m लिख लीजिएगा। वेयर 3Q² प्लस 4Q प्लस 1 इज इक्वल टू m। लास्ट में जो स्टेटमेंट क्वेश्चंस में दिया है उसी को लिख देना है। हेंस एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m ये 3m और 3m प्लस 1।
Students, so that one and only one out of n plus 1 and n plus 2 is divisible by 3 where n is any positive integer. क्वेश्चन नंबर 7 6 आप खुद कर लेंगे। 6 में देखिए, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस में दिया हुआ है 9m प्लस समथिंग 9 के फॉर्म में है। आप यहाँ चाहें तो b का वैल्यू 9 भी ले सकते हैं या 3 भी ले सकते हैं। 3 लेंगे तो आपका सॉल्यूशन शॉर्ट हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। यदि आप v का वैल्यू 9 लेते हैं तो आपको 8 तक रिमाइंडर लेना होगा, 0 1 2 3 4 एंड अप टू 8। तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा, तो आप v का वैल्यू यहाँ 3 ले सकते हैं, क्योंकि जो नंबर्स 9 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल होगा। बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू 3q प्लस r bq प्लस r वेयर ये a इज इक्वल टू 3q प्लस r, a is equal to 3q plus r where r is equal to 0 1 and 2। यदि आप 9 लेते तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लेना होता, कैलकुलेशन कम हो, इसीलिए हमने b का वैल्यू 3 लिया है। इफ r is equal to 0, a is equal to 3q, r का वैल्यू 0 लीजिएगा तो a equal to 3q। The cube of any positive integer in the question, the cube of, इसलिए आपको क्यूब करना है दोनों तरफ। a क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब, a क्यूब इज इक्वल टू 27q का होल क्यूब। स्टूडेंट्स, 27 को आप 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, 9 इंटू 3 का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 9 इसको आप m मान लें तो 9m वेयर 3q इज इक्वल टू m। इफ r इज इक्वल टू 1, a is equal to 3q plus 1, on cubing the both sides we get 3q plus 1 का होल क्यूब, a क्यूब is equal to 3q का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, और क्या होता है प्लस 3 इंटू 3q इन 3q का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का होल स्क्वायर। a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब का होल क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9 9 3 जा 27q स्क्वायर प्लस 27 9q।
स्टूडेंट्स यहाँ पर रीअरेंज कर लें। 27 क्यूब का होल क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। आप इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं? 9 कॉमन ले लें तो 3 क्यूब बचेगा, 3 क्यूब स्क्वायर बचेंगे प्लस क्यूब बचेगा प्लस 1। इसको आप m मान लें तो a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 वेयर 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब इज इक्वल टू m। और इफ r इज इक्वल टू 2 फिर क्यूब करना है और लास्ट में वो स्टेटमेंट लिख देना है। इफ r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, दिस implies that 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू बी 2 प्लस 3 इंटू ए 3 क्यूब इंटू बी का स्क्वायर 2 स्क्वायर। ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब का होल क्यूब प्लस 9 इंटू 3 27 इंटू ओहो सॉरी स्टूडेंट्स ये प्लस है, हाँ तो ये 8 और प्लस 9 इंटू 3 27 क्यूब स्क्वायर प्लस ओहो 9 3 जा 27 इंटू 2 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 इंटू 4 36 क्यूब। रीअरेंज कर लें। 27 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8, इसमें से कॉमन क्या? 9 क्यूब भी ले सकते हैं तो ये 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8, इसको m मान लें। a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8 वेयर 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब इज इक्वल टू m। लास्ट में क्वेश्चंस में दिए गए स्टेटमेंट को रिपीट कर लें।
Students, question number 7. So that one and only one out of n plus 1 and n plus 2 is divisible by 3 where n is any positive integer. कहने का मतलब है कि कोई भी इंटीजर जो n या n प्लस 1 या n प्लस 2 के फॉर्म में होंगे उसमें से कोई एक ही 3 से डिविजिबल होगा, तीनों में से कोई एक। कहने का मतलब कि यदि कोई 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर है n प्लस 1 n प्लस 2 लगातार 3 पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो उसमें से कोई एक ही 3 से डिविजिबल होगा। समझिए, हमने कहा 6 7 8 लगातार पॉजिटिव इंटीजर है